जितना हुआ था वो माइंड में है, डिफरेंशिएशन का माइंड में है ना। तो नाउ वी प्रोसीड फर्दर। नाउ राइट फार्मूला dy dx of first function into second function. Sometimes you want to differentiate the product of two functions, then you have formula in your mind. This will be equal to first function into dy dx of second function plus second function into dy dx of first function. These are very simple formula that are utilized only for the physics purpose, not for mathematics. Now this is the formula for you. Now take the example. Let us suppose dy dx of sin x into x power minus 5. Sin x into x power minus 5. So look here. This is the product of two functions. First function is what? Sin x. Second function x power minus 5. So set this in this formula. First function, that is sin x. First function is sin x. dy dx of second function. What is second function? X power minus 5 plus second function x power minus 5 dy dx of first function, that is sin x. Okay. So from this formula you have this, and here function is given dy dx of sin x into x power minus 5. Sin x is taken as first function, this is taken as second function. So now substitute here in place of first function. What you write? Sin x. dy dx of second function x power minus 5 plus x power minus 5 dy dx of sin x. Now this is sin x into dy dx of x power minus 5. You have to solve it. What formula? dy dx of x power n, that is n x power n minus 1. So this will be minus 5 x power minus 5 minus 1 plus x power minus 5. What will be dy dx of sin x? Sin x, you have not remembered the formula, that will be cos x. कल हमने ये फार्मूले लिखवाए थे, ठीक। Now this will be minus 5 sin x into x power minus 6 plus x power minus 5 into cos x. This will be your answer. If you want to simplify it, then x power minus 5 will be common from here to here. So this will be minus 5 x power minus 1 here into sin x plus cos x. Again you may write x power minus 5 upon x. X power minus 1 will be written 1 by x into sin x plus cos x. So this will be answer of this differentiation. Okay. Now write the next question. Can you do it? Yes, हम 3-4 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज करवा रहे हैं, उसके बाद हम 2-3 क्वेश्चन दे देंगे, घर पे लगाना, ठीक। Now see again. dy dx of x power n into e power x. This is what? First function, and this is second function. Apply this formula. What you write? Tell me, what you write? First function x power n into dy
dx of second function plus second function d by dx of first function. First function is x power n, right? Now here this will be x power n. What will be differentiation of this? E power x. E power x. ये देखिए, बिना फार्मूला याद किए आप बैठे हो, फार्मूला एक भी नहीं याद किए हो, फार्मूला सामने रख लो, देखते देखते भी याद हो जाए। प्लस e पावर x into d by dx of x power n. What you write here? nx power n minus 1. Actually this will be your answer, but in mathematics you have write your answer in short form. So what will be here? What's are common? What's are common? X power n into e power x. Both are common. So here you have 1 plus n e power x is common. This will be x power minus 1. So it becomes x power n into e power x 1 plus n by x. This will be your answer. Okay? Now write the next question. Look here. d by dx of x power minus 7 by 2 into log x base e. This is another question. Now tell me, what is first function in this question? X power minus 1. And second function is? Log x. Now substitute in the formula. First function x power minus 7 by 2 d by dx of second function log x base e plus log x base e d by dx of x power minus 7 by 2. You have no more knowledge about logarithms because CBSE students in 10th class has no touch about the logarithms. अगर जो CBSE से पास करता है उसके लिए सबसे बड़ा पॉइजन यही है कि CBSE आपको शुरू से लास्ट तक कभी लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल पढ़ाता ही नहीं, और इतने शार्ट में पढ़ा दिया है कि बच्चों से कोई फर्क पड़ता नहीं। तो एक दिन हमको लॉग और एक्सपोनेंशियल पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि फिजिक्स में इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? इसीलिए मैथमेटिकल फिजिक्स के बिना फिजिक्स चलना मुश्किल हो जाएगा। नाउ सी हियर, व्हाट विल बी दिस x पावर minus 7 by 2? Would you have this formula in your mind? No, फार्मूला नहीं माइंड में है। देखिए, अरे कल तो नोट किए हो, किस लिए नोट किए हो? तो देखो, it will be 1 by x, 1 by x plus log x base e into, apply here x power n. So this will be what? Minus 7 by 2 x power minus 7 by 2 minus 1. So here x power minus 7 by 2 upon x, okay, plus here it is minus, so minus 7 by 2 log x base e into x power minus 9 by 2, right? What will be this? This will be x power minus 9 by 2. But how? देखिए x को ऊपर ले जाओ, ये होगा x पावर माइनस 1, और दोनों पावर को ऐड कर दो, minus 7 by 2 minus 1 becomes minus 9 by 2, minus 7 by 2 log x base e into x power minus 9 by 2. What is common? X power minus 9 by 2 is common, so 1 minus 7 by 2 log x base e, this will be answer. Okay, so I hope that you can apply this formula d by dx of first function into second function. Now come to the next.
Next formula, note down. d by dx of numerator divided by denominator. This means in fraction. It will be in fraction, numerator upon denominator. This formula is this much. Denominator d by dx of numerator minus numerator d by dx of denominator divided by square of denominator. This is the formula. तुमने टेंथ कहाँ से पास किया है? सबकी टेंथ है. Now this is the formula for you. Okay? If you remember this formula, you feel no difficulty. Only to set up the values of numerator and denominator, you will get readily your answer. Now what will be this? d by dx of, let us suppose, sin x upon x power minus 3. This is the question for you. What is in place of numerator? Sin x. Good. What is in place of denominator? X power minus. Substitute here. Here what you write? Sin X power minus 3 into d by dx of, what you write? Sin x minus sin x. sin x into d by dx of x power minus 3 divided by the square of this, so it becomes x power minus 6. Is it clear? Now x power minus 3, what will be this? d by dx of sin x. See the formula and tell me. d by dx of sin x. कल का फार्मूला गायब हो गया क्या? cos x minus this will be sin x into x power minus 3. X power minus 3. Apply x power n. What will be this? Minus 3 x power minus 3 minus 1 divided by x power minus 6. This becomes x power minus 3. Take common from here. Yes. दोनों common है. You have cos x minus minus plus 3 sin x into x power minus 1 divided by x power minus 6. So finally you have cos x plus 3 sin x into 1 by x upon x power minus 3. This will be the answer. Okay? Now try to do this question. Here d by dx of tan x upon e power x. Very simple question given to you. Tan x is what? Numerator. E power x is denominator. Put there. In place of denominator, what you write? E power x. Okay? d by dx of numerator tan x minus numerator tan x d by dx of denominator e power x divided by e power x whole square. Square of denominator. Now solve it. E power x into what will be differential of tan x? See the formula list. Sec square x. It is sec square x minus tan x. Differential of e power x.
द सेम e पावर x डिवाइडेड बाय e पावर x होल स्क्वायर। ठीक, देखिए तुम लोगों को अब किसी चीज का वेट नहीं करना है, अपने को रन करा देना है, रन करा देना है। अभी हमें ऐसा लगता है जैसे वेट कर रहे हो कि स्कूल का क्या होगा, कब पढ़ाई होगी, कब क्या होगा। आगे बढ़ने वाला, अगर मान लीजिए आपको इतना जंप करना है ए से बी, अब सोच रहे हो कूदूं कहीं पैर वैर न टूट जाए, कूदूं कहीं नदी उदी में न गिर जाए, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। कुछ ना सोचो, जंप कर जाओ, पहुंचोगे पहुंचोगे, नहीं तो मर जाओगे, बस यही तो होगा। अब जरा बताइए, अपने जीवन को तुम नरक बना लो तो जीने से क्या फायदा। अभी 2-3 साल के बाद घर वाले पूछना शुरू कर देंगे क्या करोगे लाइफ में, पूछना शुरू करेंगे कि नहीं, क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे। आंसर मेरा कुछ नहीं। घर वाले कहें गो आउट ऑफ द हाउस, भाग जाओ बाहर, तुमसे क्या फायदा। घर वाले तुम्हें इसलिए पढ़ा रहे हैं कोई नौकरी करो और घर वालों को कमा के पैसा दो। समझ गए कि नहीं, मेन यही है, बाकी कोई तुमसे मोहब्बत नहीं है। नौकरी करोगे पैसा दोगे तो मोहब्बत है, नहीं तो घर वाले ही आपको तुरंत कहेंगे आप नालायक हो। तो इसलिए रन कर जाओ, रन कर जाओ, मेरी बात मान लो, रन कर लो, वेट वोट मत करो। अब जरा बताओ e पावर x, e पावर x क्या हुआ, सेक स्क्वायर x माइनस tan x डिवाइडेड बाई e पावर x। देखिए आज मैं तुम लोगों से ये फार्मूला पूछ रहा हूँ, नहीं आ रहा है, मैंने तुरंत जज कर लिया कि कल कुछ पढ़ के आज नहीं आए, क्योंकि अगर पढ़े होते, मेहनत किए होते तो ये फार्मूला तुम्हारे दिमाग में रहे होते। ऐसे ही बच्चे पिछड़ते चले जाते हैं और लास्ट में सब गड़बड़ हो जाता है। हेलो हेलो, हाँ अभी कुछ देर के बाद फोन करना। So have you done it? Now one more. Now write d by dx of log x base e upon sin inverse x. Okay. What is numerator log x and denominator? Sin inverse x. So substitute here. In denominator you will write sin inverse x. d by dx of numerator. Numerator is what? Log x base e minus numerator log x base e d by dx of denominator sin inverse x divided by sin inverse x whole square. Okay? yes So solve it. Sin inverse x into what will be this? 1 by x minus log x base e, what will be this? ये तो याद करते आए नहीं हो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वेयर। दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो आज आप प्रोडक्ट का और डिवीजन यानी फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये फार्मूला आपने सीख लिया। Now some special cases, ठीक, स्पेशल केस में आपको हम उन्हीं फार्मूला जो आपने अभी पढ़े हैं सारे फार्मूला इसके पहले उन्हीं पर बेस्ड होगा, लेकिन थोड़ा ब्रेन लगाना पड़ेगा आपको। नाउ राइट फर्स्ट फार्मूला
d/dx of fx whole power n is equal to n fx whole power n minus 1 into d/dx of fx. जो एक नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, कुछ आपने जाना उसके बारे में? अच्छी लग रही कि नहीं आपको? अच्छी है। किस मामले में अच्छी है? जैसे अगर आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा तो जबरदस्ती आपको क्यों पढ़ाया जाए? और जिस बच्चे को ये न आता हो x पावर -5 इंटू एक्स पावर -3 x पावर -8 वो क्यों पढ़ रहा? जिसको यही नहीं आ रहा वो पढ़ क्यों रहा है कि नहीं? तो उसको नहीं पढ़ना चाहिए, उसको अपने लेवल का कोई काम हम सीख लेना चाहिए। और इस लेवल का कौन सा काम है इस दुनिया में? ढेर सारे काम। किसी दुकान पे जाके जो किसी दुकान पे नौकरी कर लो, पंचर उंचर बनाना सीख लो, ढेर सारे काम है। ऐसी बात नहीं, काम की कमी दुनिया में नहीं है। तो ऐसे बच्चे तो पढ़ाई ड्रॉप कर देना, ही शिक्षा दे तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है, क्योंकि वो पढ़ के क्या करेंगे? फिजिक्स इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से आप पढ़ना चाह रहे हैं, है कि नहीं? इट इज़ वेरी टफ सब्जेक्ट, सो यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, अप्लाई योर क्यूरियासिटी, अप्लाई योर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट लगाओ, क्यूरियासिटी पैदा करो, देखो आसान हो जाएगा। हम लोगों का काम क्या है? फिजिक्स को आसान करना सिर्फ आपके लिए, है कि नहीं? लेकिन तभी आसान हो पाएगा जब खुद आसान करने के लिए आप तैयार रहोगे। मैं अगर ये बोलूँ कि इस पत्थर को इस टेक्निक से उठाना है तो उठ जाएगा, तो टेक्निक तो आप लगाओगे, बता मैं रहा हूँ, लगाओगे ना, है कि नहीं? मैं अगर आपसे कहूँ चले जाओ, बटन को ऐसे दबाओ, पंखा चलेगा। अब आप ऐसे दबाए तो पंखा चला, अब नहीं दबा रहे पंखा नहीं चले। तो करना तो आपको, करना है आपको है, सिखाना मेरा काम है। So now look here, this is the formula। इस फार्मूला को इतना बड़ा देखकर डिस्टर्ब नहीं होइएगा, सिर्फ आपको सेट करना है। ये फार्मूला उसके लिए है जिसको मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं आता, उसके लिए फार्मूला बना है। अभी आप देखेंगे कैसे, जरा देखिए। d/dx ऑफ log x होल पावर 3 देखिए, उस बच्चे के लिए फार्मूला है जिसको कुछ भी नहीं आता, मैथ माने शून्य है उसके लिए फार्मूला बना है। अब जरा आप पहचान लो, व्हाट इज इन प्लेस ऑफ fx? गुड। व्हाट इज इन प्लेस ऑफ n? 3। इन प्लेस ऑफ fx दिस इज log x, इन प्लेस ऑफ n इट इज 3। अब यही चीज यहाँ आपको सेट कर देना और कुछ नहीं करना है। चलिए मैं सेट करता हूँ। व्हाट शुड बी रिटन हियर? 3 राइट, इन प्लेस ऑफ fx log x होल पावर 3 minus 1 into d/dx of log x। इजी हुआ कि नहीं? कहीं कोई ब्रेक नहीं लगाना पड़ा। अब जरा बताइए, देख के बताओ, इधर देखो, दिस बिकम्स बी log x पावर 2। व्हाट विल बी दिस? 3 बार आ चुका है, 1/x। ये तीनों बच्चे थोड़ा सा लेट हो गए, तो मुस्कान लाइन से और एक बच्चे आज मैं आने वाला था नहीं, तुम्ही लोगों की वजह से मैं आया भी, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ तुम लोग अपसेट। ये लोग हमसे कहे कि आज मैं आऊँगा, हाँ, जबकि मैं आ जाने वाला है। थोड़ा सा ये रिक्शा के चक्कर में लोग लेट हो गए। हाँ, असल बच्चों का भी डिस्टर्बेंस हो ही रहा है। हाँ ठीक। So this will be your answer, 3/x into log x whole square। Okay? Has it become easy or not? Yes। Very easy।
इससे ज़्यादा इजी कुछ हो भी नहीं सकता। नाउ द नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स, आई हैव रिटन हियर साइन क्यूब एक्स। अब देखें आप ट्रिग्नोमेट्री में कितना पहचान लेते हो। एफ एक्स कितना है, एफ एक्स कितना है पहचानिए, हैं नैन्सी पहचानो, व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स कितना है। हाँ जी मुँह खोल दो ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, खोल दो। हाँ बताओ कितना है। नहीं, पहचानने के लिए हमने कहा है कि साइन एक्स कितना है, सॉरी एफ एक्स कितना है। देखिए हमारे मुंह से आंसर निकल गया है, इसलिए हम पूछेंगे भी नहीं। इसे हम ऐसे लिख दें तो ज़्यादा ठीक है, साइन एक्स होल क्यूब, होल क्यूब। फिलहाल ऐसे लिखा नहीं जाता, लेकिन अगर लिख दें तो कोई गलती नहीं है। अब हमने आपको बता ही दिया कि एफ एक्स की जगह क्या दिख रहा है, साइन एक्स, और एन की जगह क्या दिख रहा है 3। अब इसमें सेट करो तो बताओ क्या लिखें यहाँ पे 3, बिकॉज एन इज हियर। एफ एक्स की जगह क्या लिखें साइन एक्स, होल पावर क्या लिखें 3 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। Now tell me, what will be 3 sin x whole power 2 and d by dx of sin x? cosec नहीं, cos, cos x, d by dx of sin x is what? cos x. So your answer will be this 3 sin square x into cos x. ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे लिखा नहीं जाता, आप माइंड में रियलाइज कर सकते हो, लिखा नहीं जाता, लिखा इस तरह से जाता है, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चंस को डायरेक्ट आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमने इजी करने के लिए आपको लिख दिया। अब एक फाइनल हम देते हैं, पहचानिए। चलिए मुस्कान तुम पहचानोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब पावर -1/10। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट इज एफ एक्स, व्हाट इज एफ एक्स? वेरी इजी टू सी। x पावर 3 प्लस a पावर 3। अब जरा सोचिए, अगर आप इसको x क्यूब प्लस a क्यूब बोलते तो ज़्यादा अच्छा लगता, ज़्यादा अच्छा लगता कि नहीं? अब मैं जैसे आपसे कहूँ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3 है, और आपसे पूछूँ क्या लिखा है, और आप कहें x पावर 2 प्लस a पावर 2 होल पावर 3, ठीक है, तो कम ठीक लगता है। जो बेसिक चीज़ें आपको बताई गई हैं, क्या पढ़ोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 3 के बाद जब पावर बढ़ता है, जैसे एक्स क्यूब है तो आप एक्स क्यूब पढ़ोगे, एक्स पावर 3 पढ़ोगे, गलत नहीं है, लेकिन पढ़ना नहीं है। 1x लिखना क्या गलत है? फांसी की सजा मिलेगी क्या? नहीं, लेकिन कोई लाइक नहीं करेगा ये ऐसे। अगर मैंने आपको एक टी शर्ट दे दी और आपने उल्टा पहन लिया, क्या कोई बुरा काम कर दिया क्या? कुछ नहीं ना, लेकिन देखने वाले लोग क्या करेंगे? हंस देंगे। तो हंसने वाला काम मत करो, कि कोई आप पर हंसे, ऐसा काम नहीं करना है। So now tell me, very clear, in place of fx there is x cube plus a cube, and in place of n minus 1/10, right? अब इसमें आप पुट कर दो, इजीली हो जाएगा, करिए। In place of n, what you write? minus 1/10. fx, what is fx? x cube plus
a cube power -1/10 -1 into d by dx of fx x cube plus a cube. ओके, अब देखिए दिस बिकम्स -1/10 x क्यूब प्लस a क्यूब पावर -11/10। ये सॉल्यूशन आता है कि नहीं? इनटू d by dx x क्यूब प्लस a क्यूब। x क्यूब का क्या होगा? बहुत आसान है, एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला। क्या फार्मूला? 3x पावर 3 - 1 और इसका 0 क्यों हुआ? क्योंकि d by dx ऑफ कांस्टेंट 0 है, ये कांस्टेंट है। अब देखिए आपका आंसर आ गया 3 और ये -3/10। दिस बिकम्स x स्क्वायर हियर and this becomes x cube plus a cube whole power -11/10। This will be your answer। तो अगर ये फार्मूला आप माइंड में है आपके, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपको दूसरा फार्मूला दे रहे हैं। नाउ सी हियर नेक्स्ट फार्मूला, d by dx of e power fx equal to e power fx into d by dx of fx. Look here, this is the formula, right? Very easy formula. This formula is for those students who has no interest in mathematics. जिनका मैथमेटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, उनके लिए फार्मूला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आंख बंद करके सिर्फ बैठाना है इसमें। अब आओ बैठाओ, d by dx of e power sin x is equal to क्या? ये पॉजिटिव हो गई, कभी दिखाई भी नहीं पड़ी है, कहाँ गायब हो गई? चलिए आप जरा पहचानिए इसको और बताइए fx की जगह क्या है? तो बोलो, सुनाई तो पड़े। साइन x। fx की जगह क्या है? साइन x। वेरी गुड। अब यहीं पर आप सेट कर दो। बोलिए जरा क्या लिखें? बोलो, साइन x इंटू ऑफ। वेरी गुड। दिस बिकम्स e पावर साइन x। मामला यहाँ फंस रहा है क्योंकि याद करके नहीं आ रहे हो, तो cos x आंसर हो गया। फिर बताना d by dx ऑफ e पावर x क्यूब प्लस a क्यूब पावर 2। थोड़ा सा उलझाया हमें आप क्लियरली बता दो व्हाट इज इन प्लेस ऑफ fx। fx की जगह क्या है? बोलिए। x क्यूब प्लस a क्यूब होल स्क्वायर। दिस इज इन प्लेस ऑफ fx। तो सेट कर दो इसमें, तो यू है e पावर x क्यूब प्लस a क्यूब होल स्क्वायर। हो गया ना e पावर fx? हो गया कि नहीं? into d by dx of fx. What you write? x cube plus a cube. What is it? यही तो है fx। अब जरा बताइए, ये तो ऐसे ही रह गया, सॉल्व हमको इसे करना है, इसको करना है। अब जरा बताइए, इसको सॉल्व करने के लिए ठीक इसके पहले वाला फार्मूला लगेगा कि नहीं? कौन सा फार्मूला? fx होल पावर n वाला फार्मूला। वही फार्मूला यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू x क्यूब प्लस a क्यूब पावर 2 - 1, दैट इज 1
तो पावर 1 लिखते नहीं, Yes. इनटू फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस ए। तो अब आंसर आपका आ रहा है e पावर एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब होल स्क्वायर इनटू 2 ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब, दिस विल बी 3x स्क्वायर, क्योंकि इसका 0 है। Yes. ये आपका आंसर बन गया। ठीक, एक और क्वेश्चन करिए। डी बाई डी एक्स ऑफ e पावर tan इनवर्स x, e पावर tan इनवर्स x, what is in place of fx? tan इनवर्स x, fx की जगह tan इनवर्स x है, उसमें सेट करिए। so what will be written here? e पावर tan इनवर्स x into d by dx of tan inverse x. So this will be e power tan inverse x. Who will tell me differential of tan inverse x? फार्मूला देख के बताओ। हाँ? 1 plus Good. 1 upon 1 plus x square. This will be your answer. Okay? Have done it? Complete? So now third formula. Third formula. d by dx of log fx at the base e. This becomes 1 upon fx d by dx of fx. This is the third formula. See the formula seriously. अब क्वेश्चन देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग cot x. Now tell me what is in place of fx? fx की जगह क्या है? cot x. नहीं, Cot x. cot x है। Yes. fx की जगह क्या है? cot x है। यहाँ सेट कर दो। So what is right? 1 upon cot x into dy dx of cot x. इसमें सारे बच्चों को पता होगा 1 by cot टाइम होता है, तो दिस विल बी sin x dy dx of cot x minus cosec minus cosec square square x. x. ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और करो इसमें। डी बाई डी एक्स ऑफ log x पावर 4 प्लस a पावर 4। Now tell me what is in place of fx? Good. This is in place of fx. So what will be its differentiation by this formula? क्या लिखें? 1 by a power 4 into d by dx of x power 4 plus a power 4. So this becomes 1 by x power 4 plus a power 4 into what will be this? x power 4 का क्या होगा? x power n वाला फार्मूला लगाना है, तो 4x power 4 minus 1 a power 4 का 0, इसका क्या हो गया? 0। आंसर आपका आ गया 4x क्यूब अपॉन x पावर 4 प्लस a पावर 4। ये बन गया। अब जरा फोर्थ फार्मूला लिखिए। और राइट द फोर्थ फार्मूला dy dx of under root fx।
अंडर रूट एफ एक्स, तो 1/2 अंडर रूट एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स. It is also very important formula for you. Now take the question. D by dx of under root tan x. Under root tan x. What is in place of tan x? Sorry, in place of fx tan x. तो अंडर रूट tan x नहीं है, एफ एक्स तो tan x है. अब वहां सेट करो, जरा खुद सेट कर लो. 1/2 अंडर रूट tan x, ठीक, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, हाँ, so what will be this? 1/2 under root tan x into sec square x. Next, d by dx of under root sin inverse x, under root sin inverse x. एफ एक्स की जगह क्या है? हाँ, खुद कर दीजिए उसे, खुद करके लिखो. क्या लिखोगे? 1/2 अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स. इसको सॉल्व कर दो. 1/2 अंडर रूट sin inverse x into 1 upon under root 1 minus x square. Okay? तो इनकी एक्सरसाइज आपको करना है आज, इतने तक का समझ गए. अब उसके बाद डिफरेंशियल में फॉर द फिजिक्स पर्पज वी डोंट नीड एनी मोर. अब इससे ज़्यादा फिजिक्स पर्पज के लिए ज़रूरत नहीं है, इतना अगर तैयार है तो सफिशिएंट है. उसके बाद हम कल जो है थोड़ा इंटीग्रेशन सिखा दें, तब फिर फिजिक्स में करके चलते हैं. ओके.